sales to about 7,000-8,000 crores annual sales. And the kind of numbers that we're speaking about in terms of investments that have to happen in building up grid capacities and building up transmission distribution infrastructure, these 8-10 players are the ones who will, see, I think, a lot of money flowing in, and the market is beginning to realize that, and the market is also beginning to re-rate these stocks. So यहाँ पर आपको double advantage मिलेगा from current levels, where you will get earnings growth, but at the same time, because the market will realize that this is a concentrated profit pool, I think there will be a lot of re-rating in some of these names as well, and it's already begun happening. So that's one space that I like a lot. I like the real estate space a lot as well. And especially real estate players that are focused in the major metros. So I like the Mumbai real estate space quite a bit. I like Bangalore quite a bit. NCR is a little, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही volatile market लगता है मुझे, and I don't exactly understand how prices in NCR fluctuate so much in real estate. But at least players who are focused in Mumbai and focused in Bangalore are players that I like, and there are still a couple of players which I think are not fully priced with respect to the kind of project launches that they have lined up in FY25. I won't take any names, obviously, but as you're aware, my portfolio is pretty public. I share an update every month with all my positions and the percentage weights. So if anybody has any questions on any of these spaces, these are the two spaces that I'm most bullish on right now: transmission and distribution, and real estate. Thanks, Vineet. Hi, Sajal sir. हाय प्रिंस, हाय। मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। कभी कभी सुनना भी चाहिए यार। विनीत साहब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि क्या है, और टाइटल मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। देखो, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि हम तो वो वाले लोग हैं जो हर महीने 2 महीने में एक स्पेसिस करते हैं, बट मैं इतना ही ऐड करूंगा, across all sectors, across all businesses. So this is not specific to chemicals or hospitals और किसी सेक्टर के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स हैं, दैट इज नॉट रिस्क। लोगों को लगता है कि वो प्राइस 4 जून को ये हो गया और 5 जून को ये हो गया, वो रिस्क है। वो रिस्क नहीं, वो वॉलेटिलिटी है। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टिंग। अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आप बैंक में एफडी करके रखो, डेली कंपाउंड होता है, 6-7% मिलेगा, टैक्स देके उसमें 4-5% आपको मिल जाएगा। किसी तरीके से आप हाफते काफते इन्फ्लेशन को मैच कर लोगे, बीट तो कर नहीं पाओगे। तो वहां लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं है, वहां एश्योर्ड कंपाउंडिंग है, डेली कंपाउंडिंग होती है उस पैसे पे, ठीक है ना। तो वो जीरो वॉलेटिलिटी है, लेकिन बिना वॉलेटिलिटी के रिटर्न बनेगा नहीं। आपको नीचे में लेके ऊपर में ट्रिम करना है या बेचना है, वैसे ही पैसा बनेगा। So risk to me is getting the wrong end of the business cycle and the valuation cycle both put together. So no one knows what's the peak. लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस साइकिल का पीक आ गया या वैल्यूएशन का पीक आ गया। पीक और बॉटम किसी को पता नहीं है। What is easier to figure out is this not the peak? We are negative. क्या नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये इजी है ये। सो आई नेवर ट्राई एंड लुक कि यार ये बिजनेस का पीक आ गया है मोमेंटम में या वैल्यूएशन का पीक है। आई डोंट नो। अभी जेबी मैंने क्यों ट्रिम किया, वो 10 टाइम्स बुक पे है। डज इट मीन कि वो 15 टाइम बुक पे नहीं हो सकता? हो सकता है, वो किसको पता है। बट ये वही जेबी है ना जो कभी 1 टाइम या 2 उसके आसपास बुक था। जब मैंने एंटर किया तो 1 टाइम बुक था। अब उसमें अच्छा मैनेजमेंट आ गया एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग, इसी वजह से तो वो 10 टाइम्स बुक हुआ है ना। अब एनीथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो ना, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज बिजनेस इज प्राइसिंग ऑप्टिमिज्म। 10 टाइम्स बुक का मतलब ऑप्टिमिज्म है। अब वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, नो वन कैन सी द फ्यूचर। ये तो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपके पत्ते क्या है। तो आपका रिस्क आपको वही देखना है कि यार मैंने लेस देन 1 टाइम बुक पे लिया था,
अभी आज 10 times book है, there's a lot of optimism, maybe I should take some money off the table, and it has been a fast 20-30 bagger over the last 10 years, that too in an environment where index did nothing. The pharma index, that is 2015 से आप 2020 का pharma index देखो, सन को देखो, ल्यूपिन को देखो, औरबिंदो को देखो, किसी ने कोई पैसा बना के नहीं दिया. So in that context, if businesses like Jubilant Life 2013 में स्प्लिट एडजस्टेड 1:1 ₹35 के आसपास का भाव था ना, 20 बैगर हुआ वो प्लस डिविडेंड्स. सबके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेम ही था. सो आपको बस इतना देखना है कि मैं पीक बिजनेस साइकिल में और पीक वैल्यूएशन पे कोई भी सामान ना लूं, और अगर बॉटम ऑफ द बिजनेस साइकिल पे कुछ मिल रहा है, अगेन बॉटम आपको नहीं पता है. जहां पे भी पिछले 6-8 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बिलो पोटेंशियल, बिलो सेक्टर पोटेंशियल एंड बिलो बिजनेस पोटेंशियल. फार्मा और केमिकल में यही खासियत है कि आप सेक्टर कॉल ले ही नहीं सकते. एवरी बिजनेस सो डिफरेंट. मैंने एग्जांपल दिया ना जेबी का वर्सेस सन फार्मा. आप मूवमेंट देख लो पिछले 10 साल की, उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि एक ही सेक्टर में है दोनों, तो ये वो आप जानो. सो आपको बिजनेस स्पेसिफिक देखना है कि वेयर इज दिस बिजनेस इन दिस साइकिल. इज इट नियर द बॉटम ऑफ इट्स साइकिल और इज इट नियर द पीक. नियर द पीक हो, आपको पीक पता ही नहीं है, बिकॉज एक पीक के बाद दूसरा पीक आ सकता है, और वहां पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग देखनी है. अगर वैल्यूएशन भी रिच है, अगर बिजनेस इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, अच्छा अर्निंग्स दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, यू जस्ट होल्ड. तो जेबी के केस में वो नहीं हुआ ना. जेबी के केस में वो अच्छा एग्जीक्यूट भी कर रहा है और वैल्यूएशन भी रिच है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल. एंड लाइकवाइज अगर केमिकल्स ने 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किया, 2021 में सब लोग केमिकल्स ले रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे. नहीं क्लीन साइंस आपको नहीं पता, बहुत अच्छा बिजनेस है. तत्व चिंतन आपको नहीं पता है, आप तो अपने वही 4 स्टॉक ही देखते हो, तो ले लो भैया फिर आपको ज्यादा पता है. तो वही गलती हुई ना. आईपीओ, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेक्टर में बहुत ज्यादा कार्निवल का माहौल चल रहा है. आईपीओ आने का मतलब ही यही है. तो अब देख लो, जिसने लिया क्लीन साइंस उस समय या तत्व चिंतन लिया, एथर इंडस्ट्रीज और टू मेनी, रोसारी, बहुत सारे हैं वो पिछले 3-6 साल में. लेकिन उसके बाद अब आपको ये लगे कि अब ये केमिकल की स्टोरी खत्म हो गई है, या अब कुछ रिकवरी नहीं होगी, तो इतने सारे आपको मिल रहे हैं बिलो देयर हिस्टोरिक वैल्यूएशन, जहां अर्निंग्स भी बस्ट हो चुकी हैं पिछले 4-5 क्वार्टर में. वहां से मेरा इंक्रीमेंटल डाउनसाइड रिस्क होता नहीं है. इसीलिए तो आप देखो ना, कई सारे केसेस में 30, 40, 50% बहुत स्विफ्ट मूव आया है. तो मार्केट बहुत स्मार्ट होता है. रिस्क को प्राइस, वो रिस्क होता है. रिस्क इस कि आपने आईपीओ ले लिया 2021 में. रिस्क ये नहीं कि आपने पिछले महीने या 6 महीने पहले केमिकल ले लिया, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो, कोई भी, हम जस्ट रैंडम नाम ले रहा हूं. सुदर्शन 2022 में आप तो थे उस सेशन में जो मैंने प्रेजेंट किया था फ्रेंड्स. मैंने तो साफ बोला था कि यार ₹350 का ₹35 तो हो नहीं जाएगा. तो वहां पे रिस्क नहीं है. तो अगेन वही है कि मार्केट मत देखो कि मार्केट महंगा है, मार्केट सस्ता. हर मार्केट में पैसा बनता है. यू हैव टू बी पोजिशन्ड इन द राइट बिजनेस दैट इज नोवेयर नियर इट्स पीक बिजनेस साइकिल. सो 3 तरह की साइकिल है ना, इकोनॉमिक साइकिल, मार्केट साइकिल, बिजनेस साइकिल. इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल प्रिटी मच यूजलेस है. इफ यू गेट द बिजनेस साइकिल रॉन्ग, तो पैसा नहीं बनेगा. चाहे इकोनॉमी कितना भी अच्छा कर रही हो, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा कर रहा हो. सन फार्मा का एग्जांपल, ल्यूपिन का एग्जांपल आप देख लो. इंडिया तो ग्रो कर ही रहा था ना, वर्ल्ड भी ग्रो कर रहा है. हेल्थ केयर की कोई बीमारियां तो कम हुई नहीं, लेकिन वैल्यूएशन क्या था इन सबका? 9 times 10 times बुक था 2015 में. आप चेक करो जाके, तो पैसा नहीं बना. सो इकोनॉमिक साइकिल वाज फाइन, मार्केट साइकिल वाज फाइन. बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं केमिकल्स में सेम पीरियड में, इवन इन फार्मास्यूटिकल, जेबी, जुबिलेंट, दुनिया भर के, जनता, आई नेम्ड लॉट मेनी. तो वो वही चीज है. आपको तीनों साइकिल्स में से सिर्फ बिजनेस साइकिल पे फोकस करना है एंड वैल्यूएशन पे फोकस करना है. इफ यू गेट दीज टू पॉइंट्स करेक्ट, कि बिजनेस को पीक पे और पीक वैल्यूएशन दोनों साथ में नहीं लेने हैं, एंड आइडियली आपको दोनों बॉटम पे लेने हैं. जैसे सोलारा है, अब उसका सब कुछ मतलब 2021 में आप जाके
मेरा सेशन देखो ना, उसमें एपीआई का वेबिनार मैंने किया था अप्रैल में, मैंने साफ साफ बोला था कि यार 1600 रुपए पे आईबू ड्रिवन बिजनेस है, कैश फ्लो का इसमें रिस्क है। लेकिन उसमें मैं क्वेरी किया, किसी की रिसर्च रिपोर्ट आई तो मेरे को लोग कह रहे हैं कि ये तो 2000 बोल रहे हैं, इनको ज्यादा पता है, इनके पास तो एनालिस्ट होते हैं, इनके पास डेटा होता है। तो भाई ठीक है। अब वो वहां से 1600 से टूटता हुआ जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, अब आप जाके उसकी ट्रांसक्रिप्ट, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, परोस के थोड़ा कोई देगा, आप जाके देखो उसमें क्या हुआ है, वो अब क्या हो रहा है। तो वही आपको पोजीशन बिजनेस साइकिल के हिसाब से करना है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस साल सोलारा का जो ऑपरेटिंग कैश आएगा वो उसके इबिटा से कम नहीं होना चाहिए। they've done lot of they've taken lot of pain, राइट्स इश्यू सब्सक्राइब हुआ, बैलेंस शीट डीलेवरेज कर रहे हैं, यूएसएफडी का भी रिसेंट अप्रूवल हुआ, 0 ऑब्जर्वेशन मिले उनको। तो वही चीज है कि आपको बस्टेड बिजनेस, जिसकी धुलाई हो चुकी है, वो धुलाई होने के बाद और उसको कोई ले नहीं रहा, उसके बारे में कोई ट्विटर या सोशल मीडिया पे बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वैल्यू वहीं मिलेगी आपको। अभी सब जिसको देखो लॉरस का दीवाना घूम रहा है, वो या वही न्यूलैंड, अब न्यूलैंड क्योंकि 1000 रुपए से 7000 हो गया, सारे दीवाने पैदा हो गए। ऐसे नहीं पैसा बनता है। भाई बस इतना ही मुझे ऐड करना था। I'll go back to my listen only mode, and I will enjoy the wisdom that everyone else is sharing. Thank you. सर क्विक इनपुट एक बिजनेस साइकिल पे आपसे रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का अगर आप बताना चाहें तो इन दो हाँ, सेक्टर्स तो का बेसिकली। टेक्सटाइल में कुछ मोमेंटम नहीं है, बिजनेस साइकिल उसकी बिल्कुल इस समय मतलब नोवेयर नियर द पीक। लेकिन टेक्सटाइल में भी आप जाके देखो, अंबिका कॉटन है, दे आर गुड बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन अब टेक्सटाइल का जो मेजर मार्केट है, टेक्सटाइल में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। देयर इज होम इम्प्रूवमेंट एंगल, जो प्रिटी मच डोमेस्टिक कंजम्पशन है। मोंटे कार्लो इज ऑल्सो टेक्सटाइल, तो वो लेकिन सीजनल बिजनेस है, बट दे आर रिड्यूसिंग द सीजनैलिटी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम नेम्स। एसपी अपैरल्स है, सो बहुत एक सेक्टर में भी ना देयर इज वेरिएंस। एसपी अपैरल अलग काम कर रहा है और आप जाके उसमें कोई स्पिनिंग की कंपनी लोगे तो वो डिफरेंट काम कर रहा है। तो साइकिल टेक्सटाइल एज अ सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म्ड, नॉट डिलीवर्ड, तो वैल्यूएशन तो वहां पे कंफर्टेबल होनी चाहिए बाय एंड लार्ज, जनरली स्पीकिंग। अब डिमांड कहाँ से आएगी? तो देखो, कुछ तो डिमांड आप सप्रेस नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट, लेकिन मेजरली जो टेक्सटाइल की कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट पे ज्यादा वो रहता है। सो यस, इफ देयर इज, अब चाइना इसमें नहीं, क्योंकि चाइना से जो भी सप्लाई चेन मूव हुई थी वो तो या तो वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज या पाकिस्तान इधर गई थी। तो वहां से वो इंडिया मूव होके आए, तो चाहे यूरोप में या यूएस में डिमांड नहीं भी रिवाइव हो, तभी भी आपका भाई आपको ग्रोथ तो आनी पड़ेगी ना। सस्ता डजंट मीन कि आप चढ़ गए उस पर और वो स्टॉक डबल हो जाएगा, नहीं। देयर हैज टू बी अ ट्रिगर। वो ट्रिगर कहां से आएगा? अर्निंग्स का, डिमांड से आएगा। अब मैं 2 शर्ट तो पहनना शुरू नहीं कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर शर्ट मेरी पुरानी भी हो गई है और इफ आई एम स्ट्रगलिंग विद माय फाइनेंशियल्स, a lot of people in western world are struggling with their financials, right? So they may delay that purchase. तो वो ही है, आपको एक डिमांड वाला एंगल देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं पेशेंटली बैठ सकता हूँ 1-2 साल, मैं सह लूंगा थोड़ा, जैसे सुदर्शन में भी हम लोग 2 साल 3 साल बैठे ना। हमें तो पता नहीं था ना कि कब रिवाइव होगा, ये पता था कि महंगा नहीं है, बट चलेगा कब वो नहीं पता होता सिक्लिकल में। ये सब बाद में वो हाइंडसाइट में आके लोग ट्वीटे करते हैं। तो महंगा नहीं है, चलेगा कब? वो जब डिमांड आएगी तब चलेगा। बैलेंस शीट देख के लो, जो भी लो, डोंट गेट इनटू अ बिजनेस जहां पे लेवरेज हाई है। अगर नेट कैश वाली बैलेंस शीट हो या एक्सट्रीमली लो डेट वाली बैलेंस शीट हो, वो टेक्सटाइल में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरी समझ से। क्योंकि रिस्क हमेशा बैलेंस शीट और कैश फ्लोज में ही होता है, देयर इज नो अदर रिस्क। और दूसरा, एक और आपने कुछ प्रिंस पूछा था सेक्टर। सर रियल एस्टेट का। हाँ, तो रियल एस्टेट तो ऑलरेडी आप देखो रिकवरी उसमें है, लेकिन पहले कौन रिकवर हुआ? दी बिल्डर्स। अब आप लॉजिकली सोचो ना कि रियल एस्टेट में क्या क्या यूज होता है। अब
जब बिल्डर एक बार रिवाइव हो गया, सब कुछ हो गया, तो हो सकता है कि सैनिटरी वेयर भी चाहिए, हो सकता है टेक्सटाइल भी चाहिए, लेकिन जब जब पहले घर का शेल्फ, पहले तो इन्वेंट्री निकलेगी, जो उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री है पहले तो वो निकालेंगे, तो उनका कैश फ्लो इंप्रूव होना चाहिए। सो आइडियली उनका कैश फ्लो उनके इबिटा से फास्टर ग्रोथ शो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री लिक्विडेट पहले होती है। इन्वेंट्री लिक्विडेट होने के बाद जो फ्रेश डिमांड है उसमें प्री बुकिंग्स चलेंगी, प्री बुकिंग चलेगी, वो सारा बुकिंग का खेल होगा, सीमेंट यूज होगी, लोहा यूज होगा, और शेल्स बनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम उसके स्लैब्स पड़ने शुरू होंगे और टाइल्स की जरूरत होगी, और दुनिया भर का और स्विचेस हैं, वायर्स हैं, वो जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है उसमें वो सब यूज होगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको रियल एस्टेट, देयर आर मेनी वेज टू प्ले रियल एस्टेट। कुछ लोग पेंट्स के थ्रू खेल रहे हैं उसको, कुछ लोग पिडिलाइट के थ्रू, जो जो जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जिनके लिए भाई 10-15% साल की ग्रोथ ठीक है, तो पिडिलाइट हैज डन लॉट ऑफ कैपेक्स। अगेन मेरा पुराना स्टॉक है, मुझे नहीं पता इस समय वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बट उसमें अर्निंग्स का चैलेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना कैपेक्स किया। मैं उसका डिप्रिसिएशन देख रहा था पिछले 4-5 साल का, लेकिन इसको स्लो ग्रोअर। आप पिडिलाइट लेके साल भर में पैसा डबल करने का सपना देख रहे हो तो गलती आपकी है। तो लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, बिल्डिंग मटेरियल्स, आई थिंक रादर देन गोइंग डायरेक्टली थ्रू डेवलपर्स, डीएलएफ टाइप के, शोभा टाइप के, there are definitely some good developers as well, but अगर मेरे से पूछो तो मैं उसकी जो वैल्यू चेन है उसमें, बिल्डिंग मटेरियल्स में स्मॉल आइटम्स, चाहे वो कजारिया, अगेन मैं रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट एनीथिंग, बट टाइल्स में या आपके सैनिटरी वेयर में उस टाइप की जो स्टोरीज या पॉकेट्स हैं, वायर्स एंड केबल, स्विचेस, तो वो मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और छोटा बिजनेस लेंगे आप, 1000-2000 करोड़ के मार्केट कैप का, अगर प्रमोटर अच्छा है, बैलेंस शीट साफ सुथरी है, तो वहां फास्टर अल्फा बनेगा। भाई आप तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना, उनको 500 करोड़ डालना है, आपको हो सकता है 1 ही करोड़ डालना हो या उतना भी नहीं डालना हो, तो आपके लिए तो स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मिड में, एज लॉन्ग एज बैलेंस शीट इज क्लीन, प्रमोटर इंटेंट इज क्लीन, वहां पे पैसा बनेगा। सर वन लास्ट क्विक क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। तो बेसिकली सर, जैसे डेटा सेंटर की बात होगी या इस तरीके की जो हॉट थीम्स हैं, और उसमें ये भी लग रहा है कि ऑल्दो मार्केट बहुत ज्यादा फॉरवर्ड भी प्राइस करके चल रहा है कंपनीज में, बट कैसे उसको प्ले वही किया देखो, जाए, या वही मतलब छोड़ रिस्क दें है। देखो, बिल्कुल? प्ले ऐसे किया जाएगा, अगर आपने 3 साल पहले कोई डेटा सेंटर की कंपनी ली थी, या आपने कोई भी सेक्टर में 3 साल पहले लिया था, जो न्यूलैंड का एग्जांपल लो, अपना एग्जांपल लेता हूँ, अब 2022 में या 2021 में या 2020 में आप ले के बैठे हुए थे, 7,000 हो भी गया, 7,000 से 5,000 भी हो जाएगा, तो कोई आपका नोशनल लॉस हुआ वो, बट एज लॉन्ग एज बिजनेस इज गुड, वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। वही चीज आप डेटा सेंटर में या आईटी में, किसी भी सेक्टर में लगाओ, या आपने पहले से लिया, जैसे नोसेल है, अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा 2016 के लिए हुआ, इतने डिविडेंड वो दे चुका है कि मतलब बेहिसाब। या प्राज ले लो, कोई भी ले लो, तो जो पुराना स्टॉक लिया हुआ है उसमें आपको हमेशा ये भी देखना है कि यार इसमें मैं 10% का टैक्स दूंगा, चलो कोई बात नहीं, टैक्स जेबी में दे दिया, कोई बात नहीं, वो पैसा जो आया वो आप कहीं डिप्लॉय करोगे। सो यू आर मेकिंग 2 decisions, one is the exit decision, there's an 80% probability that you would be right in that exit decision, you're taking the right call on valuation and the business cycle, and the second decision is the capital that you get out after tax capital। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 नहीं मिला आपको 90 मिला, then you are redeploying that अगेन। 80% बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मान के चलो कि आप अमिताभ बच्चन है, आपको सब कुछ पता है, आपने वहां ठीक से डिप्लॉय किया, सो इट्स 0.8 multiplied by 0.8, there is 0.64. So you're making 2 decisions. So the more decisions you make, the lower is your probability of success. So sometimes not doing anything is good enough. क्योंकि आज नोसेल अगर 300 रुपए से 400 रुपए होगा, तो वो जो 100 रुपए का डेल्टा आया, इट्स गिविंग मी 2.5x ऑन माई इन्वेस्टेड कैपिटल एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो किसी का 20-25% बनेगा, किसी का वो मल्टीपैगर रिटर्न हो जाएगा जिसने पहले से लिया हुआ है। तो डेटा सेंटर का स्टॉक या कोई भी स्टॉक रिन्यूएबल्स में भी है जिसका जगराता चल रहा है, अगर आपने उसको 3-4 साल पहले से, या डिफेंस या रेलवे आपने पहले से लिया हुआ है,
आप देख लो, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही, थोड़ा ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस एज एन अपॉर्चुनिटी या डेटा सेंटर एज एन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जा रही है। आपको आपको अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होगी? वैल्यूएशन की। हाउ मच एक्सपेक्टेशन इज बिल्ट इन दैट वैल्यूएशन, बस उतना ही देखना है आपको। बिजनेस ऑलरेडी रैम्ड अप मोड में है सारे, चाहे डिफेंस हो, चाहे डेटा सेंटर हो, चाहे कोई भी रिन्यूएबल्स की एनर्जी की कंपनी लो, इंक्लूडिंग प्राज। तो बिजनेस तो सारे रैम्ड अप ही हैं मोर और लेस। what expectations are there in the valuation, that will determine whether you will make money or you will not make money. ठीक है? राइट हाँ, सर, राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। संदीप, Sandeep, you there? Yes, sir. Yes, Prince. Yes, Sandeep. So basically, we were discussing about the risk at this point in time and the current market outlook. So if you have any thoughts or any questions around it, so definitely, I mean, I don't know. सजल सर ऑलरेडी इतने कॉशस रहते हैं कि उसके ऊपर और कॉशस ऐड करूंगा तो लोग बोलेंगे कि डबल डोज हो गया. बट आई एम एक्सट्रीमली अनईजी विथ व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट. And usually, Prince, I don't talk about large caps main board, not because I'm not in industry there. It's just I don't understand that so well that I start talking about in public spaces. So I understand enough as an investor, but I don't feel strong enough to have a public view on that, right? So I'm essentially a 60% or 65% main board investor, 35% micro cap, and that's where I typically end up discussing. So interestingly, you talked about hot theme. I mean, that's always a favorite topic because at any point in time, I mean, that's the beauty of market, right? There is always a hot theme and there is always a cold theme. Challenges with hot themes are well known. I mean, old people have seen enough cycles, enough industries being glorified, stories telling, etc. 3 years back, pharma, chemicals, then IT, and now no one is talking about those sectors, right? So when sector is hot, everyone makes money. Investors makes money, vendors makes money, random guy makes money, and then obviously strong players make money. सेम चीज वही हो रहा है डिफेंस में, डेटा सेंटर में. अब डेटा सेंटर में जो रैक भी बेच रहा है, and this is global, right? Chips में just not Nvidia, even जो रैक भी बेच रहा है वो भी randomly रिच वैल्यूएशंस पे चला जा रहा है. The core question is at till what cycle, till what point in time, right? जब एक सेक्टर बहुत हॉट होता है तो मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है. That's exactly what is happening. So I was talking to one of the promoters who is essentially into a different segment of EPC, and investors advised him to go to solar EPC. Next week he brought a decent enough order, and the question we asked like, सर हमारे कहने पे कर लिया कि आप कर लोगे? नहीं, काम तो सेम ही है. हमें करना था, आप लोगों ने बोला तो हम लेके आ गए. अच्छा सर, और क्या है? बोले इसमें 10-15 साल काम रहेगा अभी. सो इट्स गुड सेक्टर टू बी इन, एंड ब्यूटी इज राइट नाउ मार्जिन्स आर डबल ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. सो आई सेड कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कई बार प्रमोटर्स आपको जो चीजें बता सकते हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं बता पाएंगे. इन्वेस्टर्स का व्यू बहुत नैरो होता है 6 months, बिकॉज दे आर सर्फिंग द वेव्स, राइट? दे आर नेवर प्लानिंग फॉर द डीप सी. वो जैसे ही वेव चेंज होगी वो दूसरी तरफ चले जाएंगे. So investor view is often very short-termist. Credit guys and promoters take much longer view on the businesses, right? So he made an interesting point on the margin. So a lot of things which we are hearing is actually true also. One, कि बहुत सारा काम है, let's say renewables में. Second, profit profiles बहुत अच्छे हैं. Now, if you are taking a 3-month view, you're nimble enough, your positions are small, it really doesn't matter, right? It's also a function of your mindset. Some people are extremely smart, they can switch trades very quickly. Some people are lazy, have a certain different style. For those people, the question is when will tide turn and at what price? So tide may turn after 2 years, but market may turn different ways or sideways, which I say, see, a lot of times these things don't hit you in terms of the valuation. They often will happen is you will buy you as in a random, I call it levels, right? So level 5 guy, level 5 is कि जब एक कोई बंदा रैंडमली बोल रहा है कि ले लो यार, सारी दुनिया तो ले रही है सोलर, सारी दुनिया तो ले रही है डिफेंस, रेलवे, तुम भी ले लो. जब वो आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल लॉस खाए.
बट उसके जो रिस्क होंगे वो इतने मॉडरेट होंगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी. So I'm again personally I've invested a lot of money in I'll say recently in renewables, railways, etc. Trying to find out interesting opportunity क्योंकि industry tailwind बहुत अच्छी है और some amazing work is happening. But at the same time ये जो broad based होता है कि डेली सुबह एक थ्रेड आ जाती है कि डिफेंस के इतने स्टॉक्स हैं, ये 30 पे चल रहा है, सारी इंडस्ट्री 100 पे चल रही है, तो लेट्स ब्रिज द गैप ऑफ 70. रादर देन आस्किंग इन रिवर्स कि वाई वो 70 का गैप था, every valuation gap is essentially it's like taken upon themselves कि हम शाम तक इसको बराबर कर देंगे एक हफ्ते के अंदर. Stocks doubling in weeks, right? Literally doubling in weeks after Twitter threats. So that segment पे जो सबसे अंत में आ रहा है ना, जैसे इस स्पेस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लेवल 2 लेवल 3 पे बैठे हैं. इन अ वे दे अंडरस्टैंड द गेम, बट देर माइट बी पीपल जो वीकेंड पे आ गए हैं, सोचते हैं क्या कि चलो मार्केट में थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सीख लेते हैं. They are the people who will never understand when tide is switching. So उनके लिए special caution है purely as a matter of courtesy. Not that we are Anna Hazare or we can do anything. I mean, most of the people who are speaker in such spaces are fairly smart. They themselves know how when to turn it around, when to switch off from the market, etc. But purely as a courtesy to your listeners, Prince, that's the only thing I would like to add here. Thanks, Sandeep. So, Vineet, any question to Sajal sir, or maybe 1-2 quick questions after that we'll close for the day. And let me see if there are any questions in the comments to. Yeah, meanwhile, you can go. I'll read out the. Yeah, no, absolutely. So, Sajal sir, thanks a lot for all the everything that you said. I completely resonate with you as I think in terms of style also, your ability to be able to be patient and build positions in sectors out of flavor is something that I've personally tried to imbibe. Able to do it to a certain extent, but still on that curve and getting there. I wanted to ask you about the entire chemical space, and I know it's a very broad statement to make chemical space, and there are different parts to the chemicals value chain. But with everything that's happening in Europe now, for example, do you see potential supply gaps emerging, and what parts of the chemical value chain would you be interested in this landscape over the next maybe few years, where there might be relatively depressed valuations and the probability of the cycle for them because of this demand supply gap with everything that's happening in Europe turning? हाँ, नहीं तो थैंक्स फॉर दैट कमेंट feedback, Vineet, much appreciated. देखो, my sense is that chemicals is a very wide area, but I treat chemical as a proxy to consumption. And how do I define consumption? The consumption may be construction chemicals, consumption may be textile chemicals, consumption may be agrochemicals, consumption may be chemicals that go into flavors and fragrances, chemicals that go into making medicines, and so on and so forth. So it's a very wide. There is hardly any chemical company other than one or two that are purely focused on the textile. They are pretty diversified. So the intermediates or the active ingredients that they make, they go across the board. So there are some that are dedicated towards, or majority of the cash flow they get from agrochemicals or maybe textile. But by and large, if you pick any established decent company that has performed in the previous cycle, their cash flows are pretty diversified and broad based. The problem that happened was people did a lot of panic buying during COVID because no one knew कि ये one time event है या ये कितना लंबा चलेगा, वो किसी को उस समय नहीं पता था. आई रिमेम्बर मुरली दिवी साहब का स्टेटमेंट कि मोलनुपिराविर जब वो उनका बिक रहा था, ही सेड कि स्काई इज द लिमिट. Not that he was attempting to misguide anyone. उनको फर्क नहीं पड़ता है उनका स्टॉक चले या नहीं चले. So what I'm trying to say is that at that point in time, even he did not know
कि is COVID a one-time opportunity or will this become a more like an annual jab? And this will become a sustainable revenue stream. So people did a lot of panic buying across the board in chemicals and the value chain. Over a period of time, last 2-3 years, that inventory has significantly reduced. And now the pressure that is coming from China, the only the way that pressure will subside is there are two levers. One is the anti-dumping, that beyond a point government will not allow the industry to suffer. So there is one trigger that Indian government will deploy probably at some point, is the anti-dumping duty that will help the industry. The second is, of course, every customer because they have seen that COVID pain, they want a second source, and they may still procure majority from China, but they want a second source. And if you have a qualified second source, आपको उससे कुछ ना कुछ regular basis पे तो लेना पड़ेगा, whether it's 10% or 20%. So if previously you were supplying 0 and today you start supplying 10 or 20, so NOSIL as an example, just आप उनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो. सो प्रीवियसली एंड उनसे ज्यादा कंपटीशन किसी ने नहीं झेला होगा चाइना के अगेंस्ट, बिकॉज चाइनीज रबर केमिकल कंपनीज आर वेरी एग्रेसिव एंड नोसिल इज अ सिंगल डोमेन, जस्ट लाइक एक कोई एग्रोकेमिकल कंपनी है सिंगल डोमेन में है, रैलिस एज एन एग्जांपल. सो single domain company in chemical is even higher risk from cash flows because वो broad brush नहीं है उसका. But given the fact that auto cycle is recovering, there's aspirational India में, everyone wants to upgrade. So again, मेरे हिसाब से the incremental growth across the board, whether it's agrochemicals, whether it's pharma chemicals or all sorts of chemicals, there should be an incremental growth coming. Q1 will not be good in my view based on whatever channel checks I have done, but Q2 onwards or maybe Q3 onwards, at some point in time this fiscal, you will see recovery. And do not assume सुदर्शन वाला केस सब में होगा, क्योंकि सुदर्शन की लॉटरी लगी है. See, a plant shutdown is an unknown event. उनको वो लॉटरी मिल गई, but they were well positioned, capacity expand करे हुए बैठे थे. So this is what I call fooled by randomness. It was a random event that no one could have predicted, including the investors. मैं भी नहीं predict कर सकता था ना कि प्लांट ही बंद हो जाएगा, competitive landscape will change. And that happened, but the company was well positioned. They have the capacity, so they can now service that. And likewise, many chemical companies are having surplus capacity today. And any incremental move on the sales side will give them operational leverage advantage. That's one. Second is inventory correction बहुत सारा हुआ था, तो they had to take that pain in the raw material adjustments, because that's always mark to market. अब उसका reverse होगा if inventory is not deteriorating further. So either there will not be any negative impact or there may be some positive impact अगर price increase होते हैं तो. So जो negative factors थे, they are slowly turning into positive, but it would be foolish to assume कि 2021 वाले valuations वापस आएंगे. That was complete madness. वो 100 साल में एक बार होता है, फिर कोविड का वेट करो अगली सेंचुरी में जब होगा, तब देखते हैं केमिकल में क्या होता है. हम लोग तो सब होंगे ही तब ट्विटर पे. सही बात है. Thank you sir, that's a great answer. हाँ, thank you. Yeah, Rajesh ji. I just want to ask Sajal ji. So I think I've been seeing him since 2013-14. Have listened to him earlier. I think the pharma bull run of 2012 to 14 created a capital base for me, I would say. And so I always found it a bit difficult for me to track all these pricing environment in the chemical space, and like chemical is like very big, chemical and pharma is like very big, huge market, and there are so many different companies, producing different chemicals, catering to different market segment. But always I found I struggled in tracking the pricing environment, like कब किसका price ऊपर चला गया, किस वजह से चला गया, and then whether that is temporary or structural, and then
in the end you tend to get it like okay the pricing गिर गया, US में price काफी jump हो गए, then they got a substantial increase in inventory, and that inventory basically led to substantial decline in demand and pricing. So all these things like struggled a couple of years time. Then I stopped investing in pharma and chemical because it was not my cup of tea and couldn't understand what exactly all these things are happening. So just wanted to ask Sajal sir, like how does he track all these pricing environment and the uncertainty on this temporary movement in demand and prices? Like how does he manage to track all these things? Any insight will be helpful, sir. No, sure. So I'm not sure if I could offer you much insight, but I'll tell you what I do. So first I try to be honest with myself. I try to be honest with my ability to predict the unpredictable. So self-awareness, point number one. Number two is I see the inherent fragility in the business that I'm evaluating. If that company is getting, so NOSIL again is an example, single segment, predominantly single segment, rubber chemical. Within rubber chemical, autos is their major contributor. So if the business is at peak valuation and auto cycle is also has been doing well over the last 2-3 years, valuations are also rich, that's an indicator that this is not the time to allocate fresh capital in this business. So that is one example where the cash flows are extremely concentrated. So Viniti Organics, one or two products or one or two segments are giving majority of the cash flow. In any business, when you find that kind of a scenario, that business is relatively fragile. Fragility is a relative thing. Fragile relative to something else. Some fragile relative to another chemical company that has got 60-70 different sources of cash flows. They've got 60-70 decent sized molecules, and no single molecule is contributing more than 4-5%. I have got zero knowledge, or I don't have any database. I'm just a normal retail investor. I don't care how the prices of the chemicals are moving in the end market. I cannot control that randomness. It's a very random thing. Sometimes the prices may go up, sometimes they fall. There is absolutely no merit in tracking those prices. What I can control is what's the valuation I'm paying, number one, and where is this business in its last 10 years business cycle as an average. So if the average of the EBITDA margins over the last 10 years is, let's say, 15%, and if today the business is at 25-30% margin, that's not sustainable. And likewise, if the business is reporting negative EBITDA, if you see, a lot of chemical companies started reporting negative EBITDA, whereas a more structural, sustainable EBITDA will be something like 14-16%. So you know that worst is already priced in, because any exceptional value, whether it's too low or too high, is unsustainable. So I focus on business cycle and I focus on valuation, and to hell with the prices in the end market. I simply do not care, because I cannot. There are hundreds of molecules, hundred of different end user industries that a typical chemical company would be serving. There is absolutely no way anyone, including the tier 1 brokerage houses, they may not say that openly, but no one has got any sort of power to predict the unpredictable. This is a very random thing. That's why I say, if you could only read one book in your life, just go through the Inserto series, Nassim Taleb. दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. नॉट इवन चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट. ये इन्वेस्टिंग के कोट ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट यू हैव टू अप्रिशिएट दैट वर्ल्ड इज गेटिंग इंक्रीजिंगली रैंडम. अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स विल कंटिन्यू टू हैपन. आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो. पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे अनप्रेडिक्टेबल. लोग हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम इवेंट को नेगेटिव सोचते हैं. नो, आई मीन देयर कुड बी अ रैंडम पॉजिटिव इवेंट एज वेल. न्यूलैंड के संग हुआ ना, उनके 2-3 मॉलिक्यूल हिट हो गए, वो भी तो रैंडम इवेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है, बट इट्स ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड.
Sir, तो so given the complexity and a lot of uncertainty about all these events, like just for example, for pharma, like US FDA warning, or like somebody else also started correct. producing. So you have so much of uncertainty. So what do you advise retail investor to take Mutual fund. So mutual fund? pharma, Yes, yes. So there pharma is and there is chemical, they hardly should any play with a mutual mutual fund fund. of chemical. I don't know Right. if there is any, but if you find a mutual fund, go through mutual fund, because you have to have a basket. See, mutual fund inherently, even if it's a sector fund, फार्मा का म्यूचुअल फंड होगा, उसके पास कम से कम 15-20 स्टॉक होंगे, उसमें से ऊपर के जो 3-4 है वो सन फार्मा और ल्यूपिन ही होंगे. Right. तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करी, उस पर यूएसएफडी का चैलेंज आया, या आपने गलत बिजनेस साइकिल या गलत वैल्यूएशन पे एंट्री ले ली और आप 40-50% नीचे. लॉरस 700 रुपए पे आप लेके बैठे हुए, आपको